سیلی NFT میں آپ کا استقبال ہے دوستو، جہاں پر مشہور شخصیات اپنا وقت گزارتی ہیں۔ سنے بلٹس کا نیا وینچر ہے سیلی NFT۔ سیلی NFT کو تفصیل سے سمجھنے کے لیے آئیے چند مخصوص ٹرمز کے بارے میں جانتے ہیں، جیسے NFTs، FTs یعنی فنجیبل ٹوکن اور کرپٹو وغیرہ۔ دیکھیے یہاں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کوائن مارکیٹ کیپ کی ویب سائٹ، جو آپ کو کرپٹو کے بارے میں بتاتی ہے۔ جیسے 18,037 کرپٹو ابھی تک رجسٹرڈ ہیں، 460 ایکسچینج ہے جس میں کرپٹوز مختلف ٹریڈ ہو رہے ہیں۔ مارکیٹ سرمایہ یہاں پر بیلنس میں ہے۔ دوستو یہ دنیا کا سب سے بڑا مارکیٹ سرمایہ ہے۔ 24 گھنٹے کی تحقیق کریں تو پہلے ہی سے بیلنس کی مقدار ہے اور بٹ کوائن یا ایتھیریم ڈومیننٹ کرپٹوز ہے، جیسے 42% ہے BTC اور 17.9% ہے ایتھیریم۔ اس لیے زیادہ تر 60% مارکیٹ پر ان دو کرپٹوز کا غلبہ ہے۔ کچھ اور تفصیل سے تحقیق کریں تو ہم سمجھیں گے کہ بٹ کوائن نمبر 1 پر ہے، ایتھیریم نمبر 2 پر ہے، ٹیتھر یا USDT نمبر 3 پر ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس مزید 18,000 کرپٹو ہیں۔ اور 24 گھنٹے میں لائیو ریٹ کیا ہے؟ گزشتہ 7 روز میں ان کا مظاہرہ اور معلومات اسی طرح ہے، اس لیے اسے کرپٹو کرنسی یا پھر فنجیبل ٹوکن کہا جاتا ہے۔ فنجیبل ٹوکن جو متعدد ہوتا ہے لیکن اس کی قیمت وہی رہتی ہے جیسے بٹ کوائن۔ اگر میرے پاس بٹ کوائن ہے تو دنیا میں اور بھی بہت لوگوں کے پاس بٹ کوائن ہوگا، لیکن اس کی قیمت آج کی تاریخ میں سبھی کے لیے 29 لاکھ ہوگی۔ اس میں تبدیلی نہیں آئے گی کیونکہ یہ فنجیبل ٹوکن ہے۔ ایسے بہت سارے فنجیبل ٹوکن ہوتے ہیں۔ در حقیقت روپیہ بھی فنجیبل ٹوکن ہے، لیکن NFTs کیا ہوتا ہے؟ NFTs مطلب نان فنجیبل ٹوکن، وہ جو یونیک ہوتے ہیں اور ان کی قیمت بھی یونیک ہوتی ہے۔ جیسے اگر میرے پاس 500 روپے کا نوٹ ہے تو اس کی قیمت سب کے لیے 500 روپے ہی رہے گی، لیکن اگر میرے پاس 500 روپے کے نوٹ پر جناب امیتابھ بچن صاحب کے دستخط آ گئے تو وہ خاص بن گیا، یعنی کہ یونیک بن گیا، اور اب میں وہ کسی بھی قیمت پر کسی کو فروخت نہیں کر سکتی ہوں۔ میں اسے فروخت کر سکتی ہوں 10 لاکھ روپے میں یا 1 کروڑ میں، کیونکہ دنیا میں اس کے جیسا دوسرا نوٹ نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ NFT بن گیا۔ اس قسم کے ڈیجیٹل NFTs بہت سارے ہیں۔ اگر ہم گوگل پر اب تک کے فروخت کیے گئے سب سے قیمتی NFTs کی تلاش کریں تو ایسے بہت سارے نتائج ہمیں مل جائیں گے۔ مثال کے طور پر یہ پینٹنگ کمپیوٹر پر ڈیجیٹلی بنائی گئی ہے، بہت ساری تصاویر شامل کر کے اور اس کا NFT بنا کر اسے فروخت کیا گیا ہے تقریباً $69.3 ملین میں، جو تقریباً 500 سے 600 کروڑ کے آس پاس ہوگی۔ یہ دنیا کی سب سے مہنگی NFT ہے۔ اسی طرح سے یہ ایک تصویر ہے جسے $28.9 ملین میں فروخت کیا گیا ہے۔ اسی طرح کی ایک اور مثال ہے کرپٹو پنک کی۔ کرپٹو پنک کو کمپیوٹر پر ہم ڈیجیٹلی کریٹیوٹی کہہ سکتے ہیں۔ اسے بھی فروخت کیا جا رہا ہے تقریباً $24 ملین میں۔ اس لیے دوستو، جو بھی یونیک ہوتا ہے وہ یہاں پر NFT بنا کر آپ فروخت کر سکتے ہیں۔ در حقیقت ٹویٹر کا پہلا ٹویٹ 2006 میں جو اس کے فاؤنڈر جیک نے کیا تھا۔ میں ٹویٹر کی بس شروعات کر رہا ہوں اور اس کے بعد کافی یوزرز ٹویٹر پر ہیں۔ حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت سی مشہور شخصیات آج ٹویٹر استعمال کر رہی ہیں۔ یہ بہت وسیع سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے۔ تو اس کا پہلا ٹویٹ جیک نے NFT بنا کر فروخت کیا $3 ملین میں۔ حالانکہ یہ پہلا ٹویٹ تھا لیکن اس نے تاریخ بنا دی تھی، تو جیک کو NFT کی یہ قیمت ملی۔ اس لیے ہم مزید بات کرتے ہیں سیلی NFT کے بارے میں۔ سیلی NFT ایک طرح کا برانڈ ہے جسے سنے بلٹس آپ کے لیے لے کر آیا ہے۔ سیلی NFT دنیا کی پہلی کمپنی ہے جہاں صرف ڈیجیٹل ہی نہیں بلکہ جسامت والی چیزوں کو بھی NFT بنا کر خریدا اور فروخت کیا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس کوئی کوائن ہے جو 100-200 سال قدیم ہے تو اس کا NFT بنا کر آپ یہاں فروخت کر سکتے ہیں، نیلامی پر ڈال سکتے ہیں۔ تو ایسے بہت سی مخصوص چیزیں ہیں جو مختلف ہیں، ان سب کا NFT بنا کر آپ یہاں سیلی NFT پر فروخت کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو تھوڑا سیلی NFT کی تکنیک کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں۔ سیلی NFT ایک ایکو سسٹم ہے۔ یہاں پر آپ ڈیجیٹل آرٹ ورک، موسیقی، مووی
ऑडियो या वीडियो वगैरह का NFT बनाकर खरीद और फरोख्त कर सकते हैं। जसामत वाली चीजों का भी NFT बनाकर आप उसकी भी खरीद फरोख्त कर सकते हैं। सेली NFT आपको मजीद क्या ऑफर करता है? सेली NFT के साथ आपको मिलता है सेलेबल वॉलेट, NFT वेब बिल्डर या सेली NFT मार्केट प्लेस। तो दोस्तों, इसको थोड़ा आसान जबान में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आज की तारीख में अमेज़न के बारे में हर कोई जानता है, तो अमेज़न एक प्लेटफॉर्म है, एक इकोसिस्टम है जो खुद सामान नहीं बनाता, लेकिन उसके साथ तख्लीक करदा, फरोख्त करदा और खरीदार लिंक्ड हैं। वैसे ही सेली NFT एक इकोसिस्टम है जो NFT के लिए बना है। आप इसमें खरीदारी कर सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं, तख्लीक कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं। दर हकीकत NFT बनाना बहुत आसान भी है। आप अपने हाथ से बनाइए, उसकी एक कीमत मुकर्रर कीजिए, बिडिंग पर रखिए और उसको फरोख्त कर दीजिए। तो इतना आसान है ये प्लेटफॉर्म जो बना है आपके लिए। यहाँ पर जो ओनरशिप है वो बहुत खास है। जैसे मैंने कहा, आपके पास कुछ फिजिकल चीज है, आपने ऐसे ही किसी को उसको फरोख्त कर दिया तो आपकी ओनरशिप खत्म हो जाती है। लेकिन अगर आप वही चीज सेली NFT के प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट मुआहदे के जरिए फरोख्त करते हैं तो आपकी ओनरशिप कायम रहती है। मतलब जब भी वो खरीदा या फरोख्त किया जाएगा, उसके बाद जब भी वो ट्रेड होगा तो आपको उसकी रॉयल्टी मिलेगी, वो भी 10% तक। तो ये सारी चीजें ब्लॉकचेन में हैं, जहां आपको शफाफियत खुद ब खुद मिलती है। कौन सा NFT कहाँ ट्रेड हो रहा है, ये सब। और सबसे खास बात ये कि ये प्लेटफॉर्म ऑर्गेनिकली बढ़ रहा है, इसीलिए ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है NFTs की खरीद फरोख्त के लिए। आइए अब NFT मार्केट के बारे में मजीद बात करते हैं। 2020 में यहाँ तकरीबन $380 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। फिर 2018 से 2020 तक 13,000 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट हुआ। अक्टूबर नवंबर 2021 तक तकरीबन 400 से 500 मिलियन का रेवेन्यू पहले ही जनरेट हो चुका था। तो ये सनत मुसलसल फरोग पा रही है। 2 से 3 साल में ये खरबों डॉलर की सनत बनने वाली है, इसलिए ये एक वसी बाजार है। अगर हम गूगल पर सर्च करें तो हमें गूगल ट्रेंड्स NFT के बारे में पता चलता है। यहाँ तक कि मशहूर हस्तियाँ हों, कारोबारी हों या खिलाड़ी हों, सभी NFT से लिंक्ड हैं या अपने अपने अंदाज में इसे फरोख्त दे रहे हैं या खुद NFT बनाकर इसे फरोख्त कर रहे हैं। अगर हम कॉरपोरेट कंपनी की बात करें, जैसे इंस्टाग्राम या अमेज़न जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां NFT जैसे प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी कर रही हैं या खुद के NFTs बनाकर अपने लोगों के दरमियान फरोख्त करके पैसे कमा रही हैं। ये सारी चीजें दुनिया में हो रही हैं। अगर इंडिया की बात करें तो 1 नवंबर 2021 को बॉम्बे टाइम्स में एक बहुत बेहतरीन आर्टिकल आया था, जिसमें लिखा था कि NFT क्या है या कौन कौन सी मशहूर हस्तियां या खिलाड़ियों से लेकर फिल्मी सितारे तक इसमें जुड़ रहे हैं या इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी चीजें वहाँ पर बताई गई थी। उसके बाद नवंबर के दूसरे हफ्ते में देखेंगे तो आपने देखा होगा कि सदी के अजीम अदाकार अमिताभ बच्चन साहब ने अपना पहला NFT कलेक्शन फरोख्त किया था 7 करोड़ में। उन्होंने अपने वालिद साहब की जो किताब थी मधुशाला, उसे अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके उसका NFT बनाकर 7 करोड़ में फरोख्त किया। तो दोस्तों, ये पहला कदम है इंडिया में और आगे आने वाले 1-2 साल में ये सनत कितनी बड़ी होने वाली है, कितनी मशहूर हस्तियां इससे जुड़ने वाली हैं। फिर 15 नवंबर को मिड डे में एक ऐड आया था, जिसमें जो हमारे फाउंडर हैं कुलबीर भाटिया जी, जिन्हें अभी हाल ही में महाराष्ट्र गौरव के एजाज से नवाजा गया है, हुकूमत की जानिब से उनका एक इंटरव्यू छपा था, जिसमें हम यहाँ पर क्या करने आए हैं, सिले NFT क्या है, ये सारी बातें उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताई थी। इसके बाद अगर हम गूगल ट्रेंड्स रिपोर्ट की बात करें, मतलब NFT मुल्क भर में कहां पर कितना सर्च हो रहा है, तो रिपोर्ट ये कहती है कि चीन में 100% लोग सर्च कर रहे हैं कि NFT क्या है, सिंगापुर में 60% हैं और इंडिया में 10% लोग हैं। तो ये 10% बहुत मायने रखता है, क्योंकि इंडिया में 70 करोड़ से भी ज्यादा लोगों के हाथों में आज की तारीख में स्मार्टफोन है
और वो आसानी से स्मार्ट मनी कमाना चाहते हैं, तो इसके लिए हर कोई ट्रेडिंग तलाश कर रहा है। कोई फॉरेक्स तलाश कर रहा है, कोई क्रिप्टो के बारे में सर्च कर रहा है। वैसे ही 10% लोग NFT क्या है ये सर्च कर रहे हैं। उन्हीं लोगों के पास अगर अच्छी मालूमात, सही मालूमात पहुंचाते हैं और उनको उस प्लेटफॉर्म से जोड़ते हैं तो वो बहुत अच्छी कमाई कर पाएंगे और उसमें आप भी बहुत अच्छा कमा पाएंगे। इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। अगर हालिया NFT की बात करें तो इसमें बहुत सी मुश्किलात भी हैं। सबसे पहली, USDT करेंसी में डील करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब सभी लेन देन क्रिप्टो में है। दूसरी, NFT बहुत ही टेक्निकल है। अगर आपको NFT की मालूमात नहीं है तो आपको तकरीबन 25 से 30 हजार डॉलर खर्च करने पड़ सकते हैं एक अच्छे NFT के लिए, और इसमें महदूद पेमेंट ऑप्शन है क्योंकि ज्यादातर एथेरियम ही में डीलिंग होती है। तो इस तरह की मुश्किलात को हल करने के लिए ही सेली NFT जदीद तकनीक के साथ आया है। जैसे सबसे पहले हम USDT सेटलमेंट की हिमायत करते हैं। आप अपना कोई भी NFT फरोख्त करते हैं और कोई भी सेटलमेंट है वो आसानी से US डॉलर में मुमकिन है, क्योंकि US डॉलर एक मुस्तहकम करेंसी है जो सारी दुनिया में काबिल कबूल है। NFT को अब मजीद बना दिया गया है। अगर आपको तकनीकी मालूमात नहीं भी है तो भी आप आसानी से NFT बनाकर बिडिंग के लिए रख सकते हैं। आपको यहाँ मुख्तलिफ पेमेंट ऑप्शन भी दस्तयाब हैं, जैसे एथेरियम, BTC, BNB, USDT और ट्रॉन। यहाँ पे आप खरीद या फरोख्त कर सकते हैं। फिर मशहूर शख्सियात के लिए ये एक वसी प्लेटफॉर्म है जहाँ वो खुद को आसानी से शामिल कर सकते हैं। अपने प्लान और इवेंट्स बनाकर यहाँ पर फरोख्त कर सकते हैं, खुद के टोकन बना सकते हैं या फिर खुद की NFTs बनाकर फरोख्त करेंगे। तो जितनी मर्तबा भी वो ट्रेड होगा, उनकी NFT भी उनको 10% से 30% तक रॉयल्टी दिलाएगी।